تو بہت ایمانداری سے چلنا ہے, آواز نہیں کرنا, اور جب بھی انہوں صحیح جواب دیتے تو سب یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے کیا زور سے بجانا ہے, ٹھیک ہے. جواب دینے کے بعد تو مہک سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو تو چٹی کو ان کے پاس ٹیم اے کے پاس لکھ دو, چٹی اٹھانا, ایک چٹی اٹھاؤ, اس کا نمبر بولو, میں وہ سوال تو آپ کو, تو دوسرا سوال آپ کو پوچھنا ہے, دھیان سے سننا سوال, اس کے بعد جواب دینا. سوال دھیان سے سننا ہے, اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہے. تو آپ کے لیے جو دوسرا نمبر کا سوال ہے اردو کے لیے, کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتابیں. ٹھیک ہے, جواب لے لیں گے. اور اس کا سر جواب کتابیں ایکسیپٹڈ, کتب بھی آتا ہے, کتب, ٹھیک ہے, صحیح جواب ہے. ٹیم بھی ایک چیٹی اٹھائے. سوال تو تیسرا سوال آپ کے لیے ہے, سوال نمبر 3, حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا کیا بولو؟ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف. جواب پورا نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے. یہ سوال پاس ہوتا ہے کیونکہ یہ جواب مکمل نہیں ہے, ایسے ہمیں نہیں لے سکتے. تو یہ جواب ٹیم سی کے لیے پاس ہو رہا ہے. تو ٹیم سی اس سوال کا جواب دے گی کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اللہ کی تعریف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں. نہیں, نیکسٹ. یہ بھی جواب ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. حمد باقاعدہ ایک اس کا تمہیں سوال کا آدھا حصہ جواب دے رہے ہیں, تو یہ سوال پھر تو ٹیم ڈی کے, جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں. بہت اچھے. تو یہ صحیح جواب ہے. ایسی نظم یا جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں. ہاں, ٹیم سی ذکر ان کے لیے ڈائریکٹ سوال ہے, ایک چٹھی اٹھائیں. تو آپ کے لیے جو سوال ہے اردو زبان کے تعلق سے, عالم کا ضد کیا ہے؟ عالم, عالم کا ضد, اپوزٹ ورڈ. عالم جو علم جانتا ہے اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ عالم کا ضد. بولو. صحیح جواب. کانفیڈنس ہونا, جواب میں تمہارے کانفیڈنس ہونا. جواب جو بھی ہو اٹینڈ کرو, تمہیں وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح جواب. عالم کا جو ضد ہے جاہل. ویری گڈ. سوال نمبر 4. تو سوال نمبر 4, نعت کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان سوال ہے. نعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں. نیکسٹ. ہاں دیو سر تھا سر. غلط جواب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نظم کہتے ہیں. ٹیم ڈی کے لیے 5 نسخہ. ایسی نظم نہیں ہے, ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں. تو یہ فرسٹ راؤنڈ تمہارا لینگویج اردو کا یہیں پر ختم ہوتا ہے. اب دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ انگلش کا. تو 14 سوال ہے. واٹ از دا پاسٹ ٹینس آف رائٹ؟ رائٹ کے 3 فارم تمہیں پڑھیں. رائٹ آگے کے 2, تو وہ بول سکتے ہیں؟ بتا دوں میں. پریزنٹ ٹینس, پاسٹ ٹینس, جیسے گو, وینٹ, گون پڑھے ہیں. تو ایسے رائٹ کا رائٹ, ٹروٹ, ٹروٹر. ہمیں پاسٹ ٹینس میں صرف رائٹ روٹ صحیح جواب ہے. رائٹ کا پاسٹ ٹینس روٹ, اور پاسٹ پارٹیسپل نہیں پوچھا تھا. بالکل صحیح جواب. ٹیم ای کے لیے 10 مارکس. زور سے آپ لیا. ہاں نیکسٹ. ایک تیسرا سوال,
What is the past tense of drink? Drink, drank, drunk. गुड. सही जवाब. Drink, drank. Past tense of drink is drank. सही जवाब. इसीलिए सवाल को सोचो, बाजू डिस्कस करो, उसके बाद जवाब दो. पहला सवाल, What is the opposite of success? Success. Very good. The opposite word of success is failure. Success, failure. कहाँ जा रही है? Next. सवाल नंबर 5. What is the plural जमा child? Child का जमा क्या होता है? Child की जमा plural. क्या बोल रहे हैं बच्चों को इंग्लिश में? चिल्ड्रन, गुड. Very good. याद आता है मगर घबराहट की वजह से ले रहे. चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन. नेक्स्ट. सवाल नंबर 2. What is the opposite word of include? Include. Opposite. गलत जवाब. डिस इंक्लूड बोले, गलत है. इधर सोच, इधर आ रहा है. एक्सक्लूड, इंक्लूड, एक्सक्लूड. तो टीम डी बोनस मेरे साथ बोनस. हाँ, तो इंग्लिश का राउंड, लैंग्वेज का राउंड यहाँ पर खत्म हुआ. भी 3 राउंड है इसके बाद. जो मास्क नहीं है उन्होंने और भी जीत सकते हैं. ये मत समझो कि ये फर्स्ट राउंड है. ऐसे तुम्हारे टोटल 4 राउंड है. तो अभी भी तुम कम बैक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं. हिम्मत मत हारो और घबराओ न को. यू हैव अ चांस टू फाइट बैक. तुम्हारे पास मौका है. तो मैथमेटिक्स का पहली चीटी उठाओ और सवाल नंबर 5 आपके लिए. मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमुआ कितना होता है? मुसल्लस में 3 जाविया रहते हैं. तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है? बोलो. 90 दर्जे. गलत जवाब. 120 दर्जे. गलत. मुसल्लस के 3 जावियों का मजमुआ कितना? बहुत अच्छे. 3 ए बी सी के लिए 5 बोनस. सवाल नंबर 6. एक अदद है, उसे हमें एक्स मान लेते हैं. उसमें कितना जमा कर रहे हैं? 5 जमा करे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है. तो उसे कैसा बोलते तुम? एक अदद एक्स, उसमें 5 जमा करे 10 आ रहा है. कैसा बोलते? 5 जमा 5 बराबर 10. गलत. x 5 होता है. आओ तो x जमा 5 बराबर 10. एक अदद में 5 जमा करे तो 10 आ रहा है. तो x जमा 5 बराबर 10. वेरी गुड. टीम डी. दायरे का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता क्या है? तो दायरे का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता क्या है? a बराबर 1/2 ज़रब दायरे का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता होता है क्वेश्चन. दायरे का रकबा a बराबर पाई r स्क्वायर. नेक्स्ट. इसका सवाल जल्दी लो. सवाल नंबर 10. मुकर्ररा जाविया किसे कहते हैं? मुकर्ररा.
180 से ज्यादा 360 से कम दर्जे जावियों को दिए। 180 से कम का जाविया और 180 से ज्यादा 360 से कम का जाविया मुकर्रर था। वेरी गुड, डायरेक्ट क्वेश्चन इनका। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, तकमीली जाविया किसे कहते हैं? तकमीली दो जावियों का मजमू होता है। वो दर्जे नहीं, तकमीली जाविया नहीं, तकमीली जाविया जवाब काम आसान। 180 दर्जे। दो जावियों का मजमू 180 दर्जे होते हैं तो तकमीली जाविये कहते हैं। बोनस मार्क्स। सवाल नंबर 7, 12 का मुरब्बा कितना है? 12 का मुरब्बा, जैसे 3 का मुरब्बा 9 है, 12 का मुरब्बा कितना है? 112। 12 गलत है, ये 224। गलत 124। गलत, मुरब्बा नहीं बोले। 12 का मुरब्बा वक्त था इतना, 3 का मुरब्बा 9 बोला मैं, 12 का मुरब्बा कितना होगा? गलत जवाब, 12 का मुरब्बा 144। वेरी गुड, 144। 12 का मुरब्बा 144, 15 का मुरब्बा 225। नहीं याद करें, नहीं याद करें, ध्यान से सुनो सवाल। एक डजन मौज, एक डजन बोले तो कितने? 12 मौज की कीमत 30 रुपए है। एक मौज कितने का? सबके पास पहुंचे सवाल। एक डजन मौज 30 रुपए, तो एक मौज कितने का? 2.5 रुपए बराबर। क्या होगा? 2.5 रुपए में एक मौज की कीमत 2.5 रुपए की। डायरेक्ट सर उनका 10 मार्क्स। ध्यान से सुनो, जाविया मुस्तकीम किसे कहते हैं? जाविया मुस्तकीम 80 दर्जे का जाविया। वेरी गुड, ठीक, 180 दर्जे का जाविया जाविया मुस्तकीम कहलाता है। सर सी के लिए 10 मार्क्स। सवाल नंबर 2, मुस्ततील का इहाता मालूम करने का जाबिता। मुस्ततील उसका इहाता पास। हाँ, P बराबर ब्रैकेट L जमा B। थोड़ा इहाता मालूम करने का जाबिता पास। A बराबर 2, P बराबर 4, L जमा B। पास। P बराबर A जमा B जमा C। बोलो। L जमा P बराबर 2 L जमा B। 8वां सवाल, बहुत आसान सवाल मिला तुमने। 3 जिलों वाली शक्ल का नाम क्या है? 3 जिलों वाली शक्ल। सवाल पास होता है। 3 जिलों वाली शक्ल, उसका नाम क्या है? मुस्ततील गलत हुआ। मुसल्लस। आसान, सब में आसान सवाल था। अब साइंस का राउंड देखो। सवाल नंबर 9, लोहे का जंग लगना तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली है? दो ही ऑप्शन है, लोहे का जंग लगना तबई तब्दीली या कीमियाई तब्दीली है? वेरी गुड, लोहे का जंग लगना कीमियाई तब्दीली है, बिल्कुल सही जवाब। टीम ए के लिए 10 मार्क्स। हाँ, नेक्स्ट। सवाल नंबर 7, सोडियम कार्बोनेट का सालिमी जाबिता। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट पास। याद करे सोचा तुमने इनका था। सोडियम की अलामत याद करना, कौन सी है, क्या है? गलत, गलत।
कौन है? सोडियम यानी कौन है पूरा यानी 2 आगे क्या है? CO3 यानी 2 CO3 याद करें तुम्हें सोडियम कार्बन नेक्स्ट सवाल नंबर 3 पोटाशियम की कीमियाई अलामत पोटाशियम अलामत किसकी पोटाशियम की अलामत के पोटाशियम के 3 सी के लिए डायरेक्ट नेक्स्ट सवाल नंबर 8 कल मैं बताया था वही सवाल है खून में जो लाल रंग का मादा रहता है उसे क्या बोलते हैं कल जब मैं क्लास में बैठे थे मैं बोला था ये सवाल आता है खून में लाल रंग का मादा रहता है उसे क्या बोलते हैं गलत मादा सुल्फ पिगमेंट बोले पार्ट इंग्लिश होता है हेमोग्लोबिन 2 पत्तों में हरे रंग का मादा सवाल नंबर 5 सोना की कीमियाई अलामत सोना सोने की अलामत इसीलिए भी कीमियाई अलामत सोने की सबर करो और खामोशी के साथ सोना सोना AU सही जवाब हाँ नेक्स्ट सवाल टीम डी 5 बोनस अब नेक्स्ट डायरेक्ट टीम डी का हाँ सवाल नंबर 10 आग बुझाने के लिए कल पढ़े आग बुझाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है कार्बन डाइगैस क्लियर बोलो कार्बन डाइऑक्साइड गुड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है 10 मार्क्स डी के सी के लिए सवाल रेशम के कीड़े कौन से पत्ते खाते हैं रेशम के कीड़े वो खास पत्ते खाते हैं दूसरे नहीं खाते कौन से पत्ते हैं उन पत्तों का नाम क्या है तुम ना वीडियो के तहत बताए मैं पूरा देखने तुम्हें वो पत्ते खाते हैं दूसरे नहीं खाते हैं मुंह बंद करो बेटा सबर ये चुप बैठो तुम्हें गलत शहतूत के पत्ते बिल्कुल सही बोनस किसे टीम बी को बोनस शहतूत के पत्ते खाते हैं दूसरे कौन से नहीं खाते हो उनके लिए डायरेक्ट सवाल है ना भी हाँ अब इनका सवाल सर इनका सवाल है देखो चिट्ठी उठाओ नहीं तो मैं पूछूं सवाल नंबर 1 इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है हमारे जिस्म का दर्जा इसमें थर्मामीटर पे देखें हमारे जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है कितना रहता है बहुत आसान सवाल है 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही टीम बी के लिए डायरेक्ट सवाल 10 मार्क्स 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर चांदी की कीमियाई अलामत चांदी की कीमियाई अलामत क्या है चांदी की सोच को बोलो चांदी गलत चांदी की कीमियाई अलामत चांदी एजी नहीं रहे होगा एजी
वह पूरा साइंस का राउंड है। अब लास्ट राउंड है जीके का। हमारे पास लास्ट मौका है, जनरल नॉलेज। ध्यान से सुनो सवाल, अभी भी तुम्हें जीत सकते हैं। तो टीम एक सवाल नंबर 1 लो जल्दी। सवाल नंबर 11, कर्नाटक के कुल अजला कितने हैं? कर्नाटक के कुल कितने अजला हैं? खामोशी के साथ हैं। कर्नाटक के कुल कितने अजला हैं? जिले कितने? 28। ये 31 जिले हैं। कर्नाटक में 31 अजला है। सही जवाब। तो 5 बोनस करेंगे डायरेक्ट। वो चिट्ठी तुम्हारे पास है क्या? सवाल नंबर 2, रेडियो सुनते हैं? कौन इजाद करे इसे? हाँ मार्कोनी। वेरी गुड। रेडियो के मौजूद मार्कोनी। नेक्स्ट डायरेक्ट सवाल सी के लिए। सवाल नंबर 3, हवाई जहाज बैठने का है? राइट ब्रदर्स। वेरी गुड। हवाई जहाज को कौन इजाद करे? राइट ब्रदर्स। ये एक चिट्ठी लिए वापस कर। हाँ 8 सवाल। हमारी कहकशां का नाम, हमारी कहकशां दूधिया मिल्क वे। सही जवाब। हमारी कहकशां का नाम मिल्की वे। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, बेलगावी डिवीजन में कितने अजला हैं? गलत गलत। बेलगावी डिवीजन में कितने अजला हैं? 7। सही है? सही है तो सही जवाब। सही जाओ। तो बेलगावी डिवीजन में 7 अजला हैं। अब इधर से सेकंड राउंड। सवाल नंबर 10, महाराष्ट्र का सदर मुकाम, कैपिटल महाराष्ट्र मुंबई। बोल रहे हैं? जोर से बोल रहे हैं। सही है। 10 मार्क्स। 10 मार्क्स 2 सवाल। 14 सवाल, चित्रदुर्गा चित्रदुर्ग 4 डिवीजन। चित्रदुर्ग कौन से डिवीजन में आता है? बेंगलुरु डिवीजन। वेरी गुड। बेंगलुरु डिवीजन में आता है। सही जवाब। डायरेक्ट सवाल 10 मार्क्स। पहला सवाल, कंप्यूटर का मौजूद कौन है? कंप्यूटर चार्ल्स। वेरी गुड। 10 मार्क्स टीम सी के लिए। टीम बी सवाल नंबर 9, पंजाब का सदर मुकाम। पंजाब का सदर मुकाम। पंजाब का सदर मुकाम। गलत। पंजाब का सदर मुकाम जैसा गुजरात है वैसा पंजाब है। नहीं पास। पंजाब का सदर मुकाम। पंजाब का सदर मुकाम पंजाब। चंडीगढ़। वेरी गुड। चंडीगढ़। 5 बोनस। टीम सी के लिए बोनस। हाँ किसका है? नेक्स्ट का इनका लास्ट। देखो ये क्विज का लास्ट सवाल है, यहाँ पर क्विज खत्म होता है। सवाल नंबर 7, सबसे बड़ा बर्रे आजम कौन सा है? एशिया। वेरी गुड। टीम ए के लिए 10 मार्क्स।
تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو کوئز کا پروگرام 4 راؤنڈ پر یہیں پر مکمل ہوتا ہے. تمام جو پارٹیسپینٹس تھے یہاں پر مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھی طرح سے کوئز آپ نے کھیلا ہے. آپ کے لیے زوردار تالیاں. بہت اچھی محنت کی ہے. دیکھو ریزلٹ سب تیار کر رہے ہیں. ریزلٹ کیا بھی ہو, چاہے ہمیں یا ہارے, اس سب گیم جیت ہار تو چلتے تھے. مقابلہ میں اس میں حصہ لینے کی بات ہے, اس میں شرکت کرنا پہلی بات ہے. پہلی بار تمہیں کوئز کھیل رہے ہیں نا, دس از سو تمہیں ریزلٹ پر جیت ہار چلتے رہتے. ایک شعر ہے علامہ اقبال کا, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل پڑے. یعنی اس شعر کا مطلب کیا ہے, میدان جنگ میں گھوڑے پہ بیٹھنے والا جو گرتا ہے, جو رینگنے والا بچہ ہے انہیں نہیں گرتا. تم جنگ میں حصہ لینا ہی امپورٹنٹ ہے, کوئز میں حصہ لینا امپورٹنٹ ہے, جیت ہار ہے کہ نہیں. تو سب نے بہت اچھی تیاری کرے, محنت کرے. آئندہ ایسا کرتے رہو. ہاں, ریزلٹ کی پرواہ نہیں کریں گے.